joined, Ramanujan joined, Leibniz joined. What about other sections? I request the teacher to please send one child to other sections and request them to join at the earliest. So, bete, I think we should not waste our time. We should not waste our time, especially for those who are late. Okay. So we are proceeding, ignoring their arrival, late arrival. Look here. Today we are discussing a very good concept. I am not naming the concept. You will judge yourself when I will show you some pictures related to daily life. Look at the picture at my back. Just see it. What is shown here? A small infant is sleeping in the bowl of cotton cloth. And you know why is it done? Because the mother of the child is busy in some household chores. She is doing some of her works, but at the same time, she has to take care her baby. And baby starts crying. What is the solution for a working mother? She will hang a bowl of the cotton with the help of stick. Just see, from the point of suspension, white cotton cloth is hanged and soft pillow cushions are placed. Upon that, a child is resting, sleeping. Why? Because mother giving it gentle push. The child is swinging to and fro, to and fro, to and fro, enjoying the swing, and gradually he sleeps or stops crying, and it will let the mother to do her daily jobs, right? So what kind of motion the teacher has told you here? The teacher has told you about the motion. Look here, to and fro movements. Now take another example. Just imagine yourself in the class, fifth class, and you are there in the park with your father. The child is sitting in the swing in the garden. What he is observing, what we are observing, the child is swinging, enjoying. Every time he comes back, his father pushes from the behind, child goes forward and again comes back. Father again applies the periodic force and the child continues to swing. So this kind of motion will also be called as to and fro motion. And look at his face, quite happy, smiling. कितने बच्चों को ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया है गार्डन में स्विंगिंग का मोशन एंजॉय करा है? रेज योर हैंड हु हैज टेकन द स्विंग्स इन द गार्डन. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शाबाश. Let's see another example. Look, a child early morning on the jogging walk, right? And at the same time, you see, right hand is backward and left hand is forward. He is swinging the arms. While swinging the arms to and fro, the child obtains stability. While walking, he gets the balance. So what we observe here, the arms of the jogger, I mean child, are swinging to and fro. Got it? So again, same kind of motion. Which motion? To and fro. तो कितने बच्चों को टू एंड फ्रो मोशन एग्जांपल्स के साथ समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड who have understood what is to and fro motion, to and fro movements. Very nice, good response, good response. थेल्स के बच्चों को मैं चाहूंगा ज्यादा अच्छे से पढ़े. बाकी दोनों सेक्शंस का और बेटर रिस्पॉन्स है. और थेल्स के टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को पंखे ही दिख रहे हैं ज्यादा क्लास में.
उसका कैमरा एडजस्ट किया जाए। चलो हम यहीं से करने की कोशिश करते हैं। बट थेल्स के टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो कैमरे का फेस डाउन करें। मेरे को पंखा ज्यादा दिख रहा है, बच्चे कम दिख रहे हैं। सो लेट्स सी some other photographs and observe what is being shown with the help of pictures. Look here. There is another example. You see the example in the amusement park. अम्यूजमेंट पार्क बने होते हैं, आपको पता है बेटे, चिल्ड्रन के। और फेयर्स भी लगे होते हैं, मेले लगे होते हैं। उसमें दिस काइंड ऑफ स्विंग, जस्ट सी दिस काइंड ऑफ स्विंग यू हैव ऑब्जर्व। मैं इसका नाम नहीं बता रहा, और मैं चाहता हूं कि इसका नाम आप में से कोई बताए। इज देयर एनी चाइल्ड हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस स्विंग? नहीं बता रहे। अच्छा, कितने बच्चों ने इसमें मजा किया है, मजा लिया है इसमें? ओहो, थेल्स में लेबनिट्स रामानुजम। अच्छा, बड़े बच्चे आपके मम्मा पापा तो बड़ा मजा कराते हैं भाई आपको। वेरी नाइस। लेट मी टेल यू, दिस स्विंग इज कॉल्ड स्विंगिंग बोट। स्विंगिंग बोट। बट दिस नेम इज लेस पॉपुलर। मोर पॉपुलर इसका जो नेम है, उसको बोलते हैं कोलंबस झूला। कोलंबस झूला। इसमें ऐसे चेयर्स लगी होती हैं, बच्चे बैठते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टीचर क्या शो कर रहा है आपको? अल्टीमेटली टीचर इज गिविंग अनदर एग्जांपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। और ये पीछे गया, आगे आया, पीछे गया। इस मोशन का एक नाम और भी है बेटे, देखो कौन सा? बैक एंड फोर्थ मोशन। ये वर्डिंग याद रखनी है बेटे। स्विंगिंग मोशन इज आल्सो कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मोशन। फाइन। इन द प्रीवियस फोटोग्राफ्स में हमने क्या देखा था? टू एंड फ्रो मोशन। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हमने क्या देखा? उसी मोशन को हमने एक और नाम से बोल दिया, बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ। ओके, शाबाश। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, teacher is showing different examples of to and fro motion, or which can also be called as back and forth motion. Fine. Let's move further। और देखें और क्या चीज दिखाई है, और क्या चीज दिखाई है इसमें। ये देखो, ये देखो बेटे, अनदर एग्जांपल। उसी चीज का हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया। और आप देखो, इस क्लॉक का ये वाला पोर्शन ऐसे हिलता रहता है, और क्लॉक की हैंड्स चलती रहती है। ऐसे क्लॉक को क्या बोलते हैं जानते हैं? इस क्लॉक का नाम क्या होता है? एनीबॉडी? बेटे, इस क्लॉक का नाम होता है पेंडुलम। पेंडुलम वॉल क्लॉक। पेंडुलम वॉल क्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूर किसी को आइडिया आया होगा कि ऐसे क्लॉक बन सकता है। किसको आइडिया आया था? जिस बंदे को ये आइडिया आया था, उस साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो। तो बेटे, ये गैलीलियो क्या था? ध्यान से देखो, गैलीलियो ने क्या किया। योर अटेंशन। ये जो गैलीलियो एक दिन अपने महल में खड़ा था, इन हिज पैलेस, राइट बेटे? तो पैलेस में उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने पैलेस में ऑब्जर्व करा कि उसका जो यहाँ पर झूमर लगा हुआ है, जिसके ऊपर कैंडल लगी हुई है, इट इज स्विंगिंग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। वो उसका जो शैंडलियर है, शैंडलियर, दैट इज मूविंग टू एंड फ्रो। तो वहां से इसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एवरी टाइम इट इज टेकिंग सर्टन कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो उसने उसने अपना कैसे देखा बेटे? उस टाइम क्लॉक तो था नहीं। उसने अपने हैंड की ऐसे पल्स दबाई, पल्स दबाई, और झूमर को ऐसे ऑसिलेट करते हुए देखा। वो कितनी ऑसिलेशंस
कितने पल्सेस में कवर करता है। यहां से उसको पता लगा कि एवरी टाइम अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज टेकन टू कंप्लीट सर्टन फिक्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन। वहां से उसको आइडिया आया कि क्यों ना इस पेंडुलम मोशन का यूटिलाइजेशन लेकर टाइम को काउंट करने वाली कोई चीज बनाए। तो टाइम को काउंट करने वाली डिवाइस का नाम होता है क्लॉक, और वो वॉल पे लटका हुआ है इसलिए दीवार का लिया हमने, और उसमें ऐसे बॉब ये हिलता रहता है पेंडुलम, तो इसलिए पेंडुलम क्लॉक बोला। जब आप घर पे जाओगे मेरा यूट्यूब वीडियो देखोगे तो ये सारी स्टोरी आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दी है बेटे। आप जब घर पे जाओगे तो इसको आप नेक्स्ट पेज को अच्छे से देखना, आपको ये सारी मैंने स्टोरी ऐसे बता दी। आपको पूरा पढ़ोगे इसको, मजा आएगा आपको। देखो, मैनी इयर्स अगो इन द इटली इटालियन सिटी ऑफ पिसा, ये गैलीलियो है, ऐसे ऐसे उसने देखा। जो भी मैंने आपको सारा स्टोरी सुनाया, अब घर जाके इसको पढ़ना, मैंने आपको ये लिख दिया। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा, आज हम प्रैक्टिकल लाइफ देखने के बाद कौन सा आर्टिकल करने लगे हैं। कैन यू लाउडली से द नेम ऑफ द आर्टिकल? व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिकल बेटे? कैन यू स्पीक इट आउट? व्हाट इज रिटन हियर? मैं देख रहा हूं सभी बच्चों के माइक्स क्लास में ऑफ हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही। बेटे हाथ नहीं खड़ा करना, आपको बोलना है डायरेक्ट। व्हाट इज रिटन हियर? कम ऑन द माइक इफ यू वांट टू स्पीक ऑन द माइक। सर पेंडुलम। पेंडुलम। पेंडुलम है, देखो भाई आपने बोला सर पेंडुलम, गलत। सर पेंडुलम इज नॉट द टॉपिक, ओनली पेंडुलम इज द टॉपिक। ओके, पेंडुलम पढ़ेंगे हम। तो पेंडुलम को हम डिफरेंट एग्जांपल से स्टडी करेंगे, और मैंने और भी बहुत सारी फोटोज लगा रखी हैं। लुक, सिंपल पेंडुलम, जहां से इस पेंडुलम को हैंग करा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जैसे सपोज करो ये कमरे का छत है, कमरे के छत के ऊपर मैंने यहाँ पर हुक लगाया हुआ है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, उसके साथ हमने एक बहुत ही लाइट वेटेड धागा बांध दिया। धागा बांध दिया, इस धागे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं या थ्रेड बोलते हैं। ओके, फिर इसके नीचे यहाँ पर मैंने मान लो एक सफियर लगा दिया छोटा सा, जो कि कांच का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है। तो मैंने इसको सेलो टेप से चिपका दिया। इसको क्या बोलेंगे? जो ये गोला लगाया इसको बोलते हैं बॉब। बॉब इज कंपैरेटिवली मच हैवियर इन मास देन द मास ऑफ द स्ट्रिंग। ये रील का कॉटन का पतला सा धागा लेना है, इसका धागे का भार नहीं होना चाहिए। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या बन गई? सिंपल पेंडुलम। और इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कहां तक लेते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर, ध्यान से सुनना, धागे की लंबाई यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आगे तक लेना है आपने, इस बॉब के सेंटर तक। इस बॉब के सेंटर तक ये टोटल बनती है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहां से कहां तक? फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। ओके, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी हुई है बेटे इधर। अब ये बॉब को हम जरा सा पुश कर देते हैं, दिस कीप ऑन ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। ओके, तो अब देखना, ध्यान से सुनना, जब ये बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन पे खड़ा है उस वक्त इसको बोलते हैं इट इज एट मीन पोजीशन। MP, मीन पोजीशन। मैंने इसको हल्का सा पुश करा, ये उधर चला गया, यहां तक पहुंचता है मैक्सिमम, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। EXTREME, एक्सट्रीम पोजीशन। वहां से ये वापिस आता है सिमेट्रिकली दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, राइट साइड एक्सट्रीम से लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पर पहुंचता है, और बैक टू द मीन पोजीशन पहुंचता है। मीन पोजीशन। इस तरह से जो टीचर ने आपको दिखाया, देखो यहां से यहां, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, एंड बैक टू मीन, इस सारी
सारे मोशन को बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। इसीलिए पेंडुलम के टू एंड फ्रो मोशन को साइंटिफिकली जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो हमें दो पोजीशंस पता लगी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और एक खास बात, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूर जाता है उस डिस्टेंस को माप लें, कैपिटल ए से लिखते हैं, उस कैपिटल ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक चाहे राइट साइड पे मेजर कर लो चाहे लेफ्ट पे मेजर कर लो, ये बराबर होते हैं। और ये देखो मैंने इधर फिगर में दिखाया भी हुआ है, ये देखो कैपिटल ए इधर से लिख रहा है एम्पलीट्यूड येलो कलर से, और ये रेड कलर से भी सेम होता है, बराबर। और देखो सेंटर में मैंने क्या लिखा है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये वाली कौन सी पोजीशन है, इसने लिखा नहीं है फिगर पे, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। किसी बच्चे को एक्सट्रीम के स्पेलिंग ना आते हो तो ऐसे EXTREME, एक्सट्रीम पोजीशन। तो कितने बच्चों को एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन तीनों समझ आ गए हैं? रेज योर हैंड, देखिए कौन सी क्लास ज्यादा बढ़िया रिस्पांस देती है। बेस्ट रिस्पांस इज ऑफ नेपियर, सेकंड बेस्ट रिस्पांस न्यूटन एंड रामानुजम दोनों सेकंड, थर्ड बेस्ट लेबनिट्स। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, डाउन डाउन डाउन। अब बच्चा बोलता है सर ये जो वन ऑसिलेशन लगी है आपने दिखाई है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन, इसको कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। टीचर सेज यस। उस टाइम को हम कैपिटल टी से लिखते हैं एंड दैट टी इज नोन एज टाइम पीरियड। दैट टी इज नोन एज व्हाट? टाइम पीरियड। फिर से सुनो, अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, it is the time taken by the bob of the pendulum to complete one oscillation। एक ऑसिलेशन को कवर करने में जितना टाइम लग जाए उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब बच्चा बोले सर एक ऑसिलेशन खुद कितनी होती है? ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक ऑसिलेशन का मतलब है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाओ, एक्सट्रीम से निकल के दूसरी एक्सट्रीम तक आ जाओ एंड बैक टू द मीन पोजीशन। ये जो टीचर ने ब्लैक लाइन लगा दी इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ओके, अब क्यों ना मैं आपको ये एक्टिविटी से करके दिखाऊं। कितने बच्चे एक्चुअल में पेंडुलम देखना चाहते हैं? रेज योर हैंड। जो बच्चा कहता है सर टेबल पे दिखाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मैं अपने बच्चों को टेबल पे दिखाने लगा हूं। देखो ये मैंने अपना, ये मेरे पास टेबल के ऊपर टेबल रख दिया, मैंने अपना प्लेटफॉर्म ऊंचा कर लिया और मैंने अपने बच्चों को पहले ही एक सिंपल पेंडुलम बना रखा है। लेट मी शो यू, लुक हियर। ये मेरा स्टैंड है, वो लोहे का बना हुआ है, और ये मैंने बेस को टेबल पे ऐसे टिकाया और ऊपर देखो listen attentively. I have placed a platform here, and here is the iron stand, strong base. At the top, you see this is some hanging hooks, and from the hanging hooks, I have tied the thread. So these hanging hook at which I have tied the thread that serve as the point of suspension, point of suspension. And from the point of suspension, this cotton thread is tied and it is hanging vertically, and at the other end of the string I have tied a strong massive particle which is serving as bob.
You know, actually what I have done? I have taken the marble of the glass with which the children are playing marble, and that marble is taken here, thread is joined here, and cellotape is connected over that. I have wrapped the whole structure in the rice paper. Okay. So simple white paper you can take. Now you see, with the very light weighted string of the cotton, a massive structure, the bob of sufficient good mass is hanging. This whole structure is called simple pendulum. Presently, it is at its mean position. Okay. The moment I jerk it, it goes to the extreme position, comes back to the mean position, overshoots the mean position, reaches another extreme position, and back to the mean. Will it really do that? Let's see. I am giving a particular jerk to the pendulum, bob of the pendulum. Just say it is the to and fro motion, or you can say back and forth motion, or you can also say it what? Oscillatory motion of the pendulum. Once again, I am giving the jerk to the bob. Just see, it is hanging. I am giving a little velocity from its mean position. It goes to the extreme and again coming back and flowing. To and fro motion, back and forth motion. And technically, as per the subject of physics, we call it oscillatory motion. Oscillatory motion. इसका एक नाम और भी होता है बेटे, वो भी याद रख लोगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा. इसका एक नाम और है, ध्यान से सुनना. सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. चार नाम बताया टीचर ने इसके. चार नाम. टू एंड फ्रो मोशन इंग्लिश में, बैक एंड फोर्थ मोशन इंग्लिश में, फिजिक्स में क्या बताया? ऑसिलेटरी मोशन, और क्या बताया? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो जब ये अपना ऐसा अच्छा मोशन ऑसिलेट करता है, वी कैलकुलेट इट्स वन टाइम पीरियड. हाउ टू कैलकुलेट वन टाइम पीरियड? फ्रॉम मेन पोजीशन आई विल लेट इट टू गो टू द एक्सट्रीम. फ्रॉम द एक्सट्रीम I will let it go to the another extreme and later back to the mean position. This becomes one oscillation. Whatever time is taken from by the bob to complete one oscillation, that will be noted by the clock, and from that stopwatch I will use. From that I can calculate the time period. What is time period? Time period is the time taken to complete one oscillation. अब देखो मैं इसको हिलाऊंगा और जैसे ही वन ऑसिलेशन होगी आई विल से डन. तभी आपको पता लग जाएगा टीचर ने जहां पर डन बोला है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट्स. आई एम स्टार्टिंग. जस्ट सी. डन डन डन. तो आपने देखा जैसे ही वो वापिस आता है वन ऑसिलेशन करके, तो टीचर कहते हैं वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड. सो आई एम प्लेसिंग इट डाउन. कितने बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, नाइस रेस्पॉन्स. आई एम प्लेसिंग इट डाउन and again I'm showing the things back on the board. Okay, shabash. Again look at the board, what I am showing here. I'm showing another picture to you. There is some question. Length of the thread is 60 centimeter. Radius of the bob is 2 centimeter. What is the length of the pendulum? Your attention. Let me show it with the help of some diagram. This is the ceiling of the room. This is the hook point, which is called point of suspension. From the point of suspension S, cotton thread is there, and let the length of the cotton thread is Y. Okay, here I will take the bob, and bob radius is
bob radius is how much? That radius is say r. So while going down by radius, I reach the center of the bob. Then what is the length of the pendulum? Length of the pendulum is starting from point of suspension and reaching to the center of the bob. That means L is equal to sum of y and r. देखो वर्टिकल डिस्टेंस y में बॉब का रेडियस ऐड कर देंगे तो दोनों ऐड होने के बाद हमें L देगा. Therefore L is equal to length of the string plus radius of the bob. Now I will use the same formula to solve this numerical problem. What is length of the string is given to us? 60 centimeter. It means y value is 60 centimeter. What is the radius of the bob? Just see, 2 centimeter. That means r is equal to 2 centimeter. So adding the both, length of the pendulum becomes 62 centimeter. 62 सेंटीमीटर. ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि गलती से भी बच्चा अकेले y को ही लेंथ ऑफ द पेंडुलम ना मान ले, अकेले धागे की लंबाई को लेंथ ऑफ द पेंडुलम नहीं मानना, बल्कि धागे की लंबाई में इस गोले का ये जो बॉब है उस सफियर का रेडियस भी ऐड करना है. जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड. Please raise your hand if you have understood the numerical Pythagoras action. Beautiful, beautiful response. Shabash. Let's move to another thing. What is the next photograph? Oh, time period is made to calculate. ध्यान से देखो बेटे क्या कह रहा है. Both extreme positions are shown. हालांकि ये दोनों दिखा रखी हैं, डॉटेड लाइन से दिखा रखी हैं. इसका मतलब बॉब इज समटाइम्स एट द मीन पोजीशन, देन इट रीचेस द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, goes back to the left position, back to the mean position, and this swinging motion continues. Now he says, what do you understand by time period? Teacher has already told you. What? Mean position to extreme position to mean, another extreme position, and back to the mean position. इतने को क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन. और इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम हो गया उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ पेंडुलम. इसलिए कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करनी है? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कवर करने में जितना टाइम लग जाए वही टाइम पीरियड होता है. ये देखो मैंने लिख के भी रखा हुआ है यहाँ. ओके. अब एक बात और, मान लीजिए कोई चीज ऐसे ऐसे स्विंग करती है, बड़ी फास्ट करती है, बड़ी फास्ट, और मैंने उन बच्चों को बोला जो कहते हैं सर मेरा तो बहुत फास्ट कर रहा है ऑसिलेशन, तो मैंने उसको बोला अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम ये पता करो कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कवर हो रही. टाइम तुम फिक्स कर दो 1 सेकंड, एंड हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकंड वो नोट करो. तो बच्चे ने नोट करा सर मेरे पेंडुलम ने ना 1 सेकंड के अंदर अंदर 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर दी. मैंने कहा जानते हो ये 20 क्या है? नहीं सर, 20 को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. एक नया टर्म सिखाने लगे हैं टीचर, स्मॉल एफ से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट? कितनी ऑसिलेशन 1 सेकंड में कवर कर दी हैं. यानी डेफिनेशन क्या बनी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड लिख दो या कवर्ड लिख दो. कवर्ड इन 1 सेकंड. अब दोनों की डेफिनेशन ध्यान से देखो.
उसमें तो ऑसिलेशन ही एक है और टाइम हमने नोट करना है, और इसमें टाइम 1 सेकंड है, ऑसिलेशन हमने नोट करनी है। तो दोनों की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ने से पता लगता है, क्या पता लगता है, ये वाला फार्मूला जो टीचर लिखने लगे हैं, क्या, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। किसी एक की वैल्यू पता हो, दूसरे की निकल जाएगी। कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। एक बात और याद रखना, जैसे हम दूध को मापते हैं लीटर्स में, लेंथ को मापते हैं मीटर्स में, इसी तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड को मानने पड़ते हैं वो यूनिट्स। तो सभी बच्चे याद रखेंगे क्या, ये याद रखेंगे कि टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, एस से लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो एच, और छोटा वाला जेड, HZ, इसका नाम होता है हर्ट्स, HERTZ। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। कितने बच्चों को टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी विच सेक्शन इज बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउन डाउन, थैंक यू। आपके स्कूल में एक सेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ रहा है बस, उसका नाम है थेल्स। थेल्स के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का ध्यान बोर्ड पे करवाया जाए। और पाइथागोरस में ये दो बच्चे लड़ रहे हैं मैम, पाइथागोरस में ड्यूटी दी जाए, कुछ बच्चे रोमिंग कर रहे हैं क्लास में। जब तक ये बच्चा रोमिंग करता रहेगा पाइथागोरस का, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बार बार टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे स्कूल का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये पाइथागोरस में एक और बच्चा खड़ा हो गया, रेड टी शर्ट वाला। प्लीज स्टॉप देम रोमिंग। बिना आपकी परमिशन पे कोई बच्चा सीट से ना खड़ा हो। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। वाओ, लुक एट, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड का वैल्यू डिपेंड करता है? वैल्यू, टाइम पीरियड का वैल्यू 10 सेकंड भी हो सकता है, 5 भी, 3 भी, अलग अलग पेंडुलम में अलग अलग होता है। लेकिन आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है? बेटे सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर का नाम होता है, स्मॉल जी से लिखते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके ऊपर डिपेंड करता है, यस। और सभी बच्चों ने याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? अगर हम अपनी अर्थ पे बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ पे होती है। इसके बिना एक वैल्यू और भी आपने याद रखनी है, मून पे। ग्रेविटी की वैल्यू मून पे कितनी होती है? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.63। देखो मून पे कितना छोटा है और अर्थ पे कितना ज्यादा है। और ये टाइम पीरियड एक चीज पे और भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, यस। कोई बच्चा बोलेगा, सर ये वही लेंथ लिख रहे हो ना आप, जिसको आपने बोला था स्ट्रिंग की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। यस, ये वही लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, जो हमने स्टडी करा था। इन्हीं दो चीजों के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, और किसी पे नहीं करता। अगर आपसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं दो चीजों पे, लेंथ के ऊपर, या फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। जिन बच्चों को टाइम पीरियड का डिपेंडेंस समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब अगले पेज पे मैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात। शाबाश, एक मैं खाली जगह निकालता हूं पहले, फिर बताऊंगा आपको। यस, यहां पर बताने लगा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चा ये वाला पेज ध्यान से सुन लेगा, वो अपने फाइनल पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा इस आर्टिकल में। ध्यान से सुनना बेटे। अगर आपसे पूछे टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, आपका आंसर होना चाहिए यस। अगर वो बोले किस तरह से डिपेंडेंट होता है, तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम को इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज। दूसरी बात, टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। हाँ जी, करता है। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, सॉरी, अगर ग्रेविटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, डिक्रीज। देख लो कौन सा एरो किधर को जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कौन सा एरो किधर जा रहा है। राइट। अगर कोई बच्चा बोले सर जो नीचे हम सफियर लगाते हैं, बॉब लगाते हैं, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला बॉब हम भारी कर दें या हल्का कर दें, इससे टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा? यानी टीचर इज स्टूडेंट इज आस्किंग फ्रॉम द टीचर, सर वेदर टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब। तो टीचर का आंसर है नो। चाहे आप मास को इंक्रीज कर दो, चाहे आप मास को डिक्रीज कर दो, टाइम पीरियड जो होएगा पेंडुलम का उतना ही रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा वो, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। और एक बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी? फ्रीक्वेंसी की नेचर टाइम पीरियड से अपोजिट होती है। अगर किसी भी ऊपर वाली इलुस्ट्रेशन में टाइम पीरियड मान लो बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मैं ये चाहूंगा इतना बड़ा आप सारा नोट कर लो। शाबाश बेटे, इससे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड देखो यहां पर मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सभी बच्चे नोट कर लो इतना हिस्सा। हरी अप हरी अप, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखो नेपियर के बच्चे नोट ही नहीं कर रहे, वेरी सैड। बाकी स्कूल सारा नोट कर रहा है, नेपियर के स्टूडेंट्स, पाइथागोरस के भी लास्ट वाले बच्चे नहीं नोट कर रहे। लेबनिट्स में बच्चे ऐसे घूम रहे हैं क्लास में जैसे कोई गार्डन में घूम रहे हो। शाबाश। अब इतना नोट करने के बाद जिन बच्चों ने नोट कर लिया, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, सबसे बढ़िया नोट करा है। नेपियर के स्टूडेंट ने नोट भी कर लिया, ब्रिलियंट। ये कौन से न्यूटन के बच्चे भी तेज है भाई। न्यूटन के बच्चों ने नोट कर लिया है। और किसने नोट कर लिया? ओ, थेल्स के बच्चे, ब्रिलियंट। थेल्स के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। शाबाश शाबाश। वेरी नाइस। अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। अब बैक टू द फोटोग्राफ समझाते हैं। देखो बेटे, टीचर ने इसमें और भी फोटोग्राफ्स दिखा रखी हैं आपको। लेट्स सी। ये देखो, यहां पर टीचर ने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बताया।
मून के ऊपर ग्रेविटी देखो कितना कम है, 1.62 लिखा हुआ है। वैसे मैं कहूंगा आप इसको 1.63 याद करो, 63, और अर्थ की है 9.8। तो दोनों में से कौन सी जगह पर टाइम पीरियड ज्यादा होएगा? सेम पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन सी जगह पर ज्यादा होगा? अर्थ का ज्यादा होएगा या मून पे ज्यादा होगा? कौन बताएगा? आ, न्यूटन का बच्चा माइक पर आकर बताए, कोई भी बच्चा। न्यूटन में कोई बच्चा माइक पर बता सकता है? अर्थ। शाबाश। तो एक बच्चे ने बोला सर देखो, आपने बोला था ना टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होता है जितना ग्रेविटी कम होता है। तो मून की ग्रेविटी तो कम है। अगर मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से काफी कम है तो टाइम पीरियड का बिहेवियर उल्टा होता है। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज लेसर whereas time period on moon is larger। वही पेंडुलम अगर हम अर्थ पे ऑसिलेट कराएं, उसको मून पे ले जाएं, मून के ऊपर बेचारा वो चलता चलता बहुत ज्यादा टाइम ले देगा एक ही ऑसिलेशन को कवर करने में। ओके, ये याद रखना है। और क्या सीखा हमने? लेट्स सी नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये देखो बेटे, टीचर ने एक बार छोटा सा बॉब लगाया है और एक बार काफी बड़े साइज का बॉब लगाया, लेकिन दोनों में टाइम पीरियड सेम रखा है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। ये देखो, मास डज नॉट इफेक्ट टाइम पीरियड। मास कभी भी, मास के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होएगा। भारी बॉब के लिए भी उतना ही टाइम पीरियड लगता है और हल्के बॉब के लिए भी। ओके, तो टिचर ने आपको पहले ही बता दिया था मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये देखो, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में अब एक फिगर बना, एक डिवाइस बना लिया। ये पेंडुलम का क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक है, उसका ये पेंडुलम है। और इसका ये बॉब जैसे जैसे ऑसिलेट करता है, इस क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं, टाइम दिखाती हैं। ये बॉब चलते चलते रुक ना जाए एयर रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए हमने इसमें पुलिस की मदद से और स्प्रिंग की मदद से, स्ट्रिप स्प्रिंग बोलते हैं इसको, एक मैकेनिकल सिस्टम दे रखा है। यहां से हम जब चाबी भरते हैं क्लॉक की तो ये स्प्रिंग टाइट हो जाता है। ये अपनी एनर्जी से इस बॉब को लगातार ऑसिलेट कराता रहता है 24 घंटे, जिससे ये क्लॉक चलता रहता है। बस एवरी अर्ली मॉर्निंग हमें उठ के इस चाबी को ऐसे 15-20 बार करके इस स्प्रिंग को टाइट कर देना होता है। जैसे जैसे ये स्प्रिंग लूज होता जाएगा और हमारा बॉब कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस तरह से हमारा, हमने पेंडुलम के मोशन को प्रैक्टिकल लाइफ में एक डिवाइस बना लिया यूजफुल। कौन सा? जो हमें समय बताता है। क्या बोलेंगे इसका नाम? इसका नाम बोलेंगे हम पेंडुलम वॉल क्लॉक। पेंडुलम वॉल क्लॉक uses a swinging pendulum to keep the time. Energy from the wound spring passes through the gears to the encampment, which works with the pendulum to move the clocks moving forward. ओके, क्लॉक की हैंड्स हमेशा ऐसे चलती हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्लॉक की हैंड्स ऐसे चलती हैं बेटे हमेशा। ओके, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखें बेटे, ओ ये क्या दिखा रखा है? सिज्मोमीटर। सिज्मोमीटर, इसके लिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ये क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनो। हमारे धरती पे कभी कभी अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक आया और नीचे से अर्थ के अंदर प्लेट्स हिल गई, ऊपर वाली बिल्डिंग्स क्लैप्स हो जाती हैं। और हमने स्कूलों में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जैसे ही अर्थक्वेक आए जस्ट रन अवे without taking the permission from the teacher, go to the ground and stand in the open area like basketball ground, football ground of
of your school, wherever you find the open area like early morning prayer ground, जैसे ही अर्थक्वेक जाए आ जाए आपको वहां पर भागना होता है। लेकिन इस अर्थक्वेक को जो मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है सिज्मोमीटर। ये सिज्मोमीटर हमें बता देता है कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा तीव्र आया, कितना स्ट्रांग आया। और इसको मापने के लिए जो स्केल यूज करी जाती है उसका नाम होता है राइटर स्केल, RICHTER, राइटर स्केल। अब ये सिज्मोमीटर काम कैसे करता है, लेट मी टेल यू। देखो बेटे, ये मेरे पास क्या है, बॉब ले लिया मैंने, और ये जमीन के ऊपर ऐसे रखा रहता है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, राइट, इट इज फॉर्मली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पर बॉब के यहाँ पर नीचे मैंने एक हैंगिंग पेन लगा रखा होता है, पेन, पेन के अंदर इंक डाला होता है, और ये नीचे एक पेपर लगा होता है, ग्राफ पेपर होता है यूजुअली, इसको ऐसे इससे टच करा होता है। जैसे जैसे ये ऐसे हिलता रहेगा तो पेन से एक पर्टिकुलर डिजाइन बनता रहेगा। और ये कागज हमने ऐसे सिस्टम करा होता है, ये जो ग्राफ पेपर वाला पेपर है वो आगे आगे स्लिप करता जाता है, जैसे जैसे ये ऑसिलेट करता है पेपर ऐसे नीचे से निकली जाता है इसके, तो पेपर के ऊपर एक पर्टिकुलर डिजाइन बन जाता है वेव का। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये जमीन पे, जमीन हिलता है तो प्लेटफॉर्म हिल जाता है, तो प्लेटफॉर्म हिल जाता है तो ये पेन भी नॉर्मल वेव फॉर्म इसका डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अभी मैंने हिलाया, ये कितना बढ़िया हिल रहा है क्योंकि बेस इसका फिक्स है। अब मान लो अर्थक्वेक आ गया तो बेस भी हिल गया, ऐसे बेस हिल गया तो देखो ऊपर क्या हो गया, जैसे ही बेस हिल गया जमीन पे रखा हुआ, और इसका पेंडुलम का मोशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके नीचे लगे हुए हैंगिंग पेन का मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो यहाँ पर इस ग्राफ पेपर के ऊपर वेव बन रही थी उसका सिमेट्रिकल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टर्ब होएगा उतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ग्राफ की मदद से, सिंपल पेंडुलम की मदद से हमें किसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बता सके उसको बोलते हैं सिज्मोमीटर। जिन बच्चों को ये समझ आ गया सिज्मोमीटर, प्लीज रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। तो आगे देखते हैं हम कौन सी फोटोग्राफ है। फिनिश हो गए बेटे। अब हमने ये जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसके ऊपर ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो तो कौन बच्चा इसको कर पाएगा। नहीं, ये देखो आप क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द टाइम टेकन टू कवर 0.5 ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड। 0.5 बेटे, 0.5 ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितने सेकंड लगे? बच्चा बोलेगा सर 2 सेकंड लगे। तो पेपर में तो टाइम पीरियड पूछा हुआ है। इमीडिएटली एक बच्चा कहेगा सर टाइम पीरियड के लिए तो पूरी ऑसिलेशन होनी चाहिए, आपने 0.5 ऑसिलेशन का मतलब तो आधी ऑसिलेशन है, आधी ऑसिलेशन, तो आप इसमें आधी ऑसिलेशन और ऐड कर दो। जैसे ही आप आधी ऑसिलेशन ऐड करोगे तो 2 सेकंड और भी ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करोगे तो 1 ऑसिलेशन हो गया, उधर टाइम को ऐड करोगे 2 + 2, 4 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब है 1 ऑसिलेशन को कवर करने के लिए, 1 ऑसिलेशन को कवर करने के लिए हाउ मच टाइम इज कंज्यूम्ड? 4 सेकेंड। 1 ऑसिलेशन को कवर करने के लिए हाउ मच टाइम? 4 सेकेंड। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। इस तरह से ये टाइम पीरियड बना। कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, चलो मैं ही करा देता हूं उसको भी। देखो आप कर सकते हो ये। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 3 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 15 ऑसिलेशंस? कौन बच्चा बताएगा? एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए 3 सेकेंड्स हैं, 15 ऑसिलेशंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? माइक पर बताओ बेटे, पास्कल स्टूडेंट
प्लीज कम ऑन द माइक। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। रामानुजम, एनीबॉडी कम ऑन द माइक। नेपियर, कम ऑन द सर माइक। 45 सर 40 क्या बात है। सर रामानुजम, 30 oscillation 4 seconds रामानुजम करेक्ट, रामानुजम करेक्ट। पास्कल के बच्चे अच्छे से नहीं बता रहे, क्या बात होगी। माइक तो ऑन करो बेटे, पास्कल के बच्चे आप बताओ। सर 30 seconds 30 oscillation 6 seconds नहीं 30 ऑसिलेशन तो नहीं बेटे, 15 ऑसिलेशन उसने बोली हैं। 15 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। नेपियर स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द माइक। नेपियर में माइक पर आकर बताओ। 35 ब्यूटीफुल। ये न्यूटन ने तो बहुत अच्छा आंसर दे दिया, बिल्कुल करेक्ट। नेपियर का बच्चा माइक ऑन करके बताए तभी मजा आएगा भाई। शाबाश, नेपियर इज करेक्ट। आप सभी जिस जिस बच्चे ने 45 सेकंड आंसर दिया है उसका करेक्ट है। रेज योर हैंड। इसका 45 आ गया। रेज योर हैंड जिनका 45 आ गया। अब इसको करना कैसे था, गौर से देखो। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना दिया है, 3 सेकेंड। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हमारे पास टोटल कितनी ऑसिलेशन है बेटे, 15। इसका मतलब वन ऑसिलेशन के लिए अगर 3 सेकेंड लगता है तो 15 ऑसिलेशन के लिए टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 15 × 3, 45 सेकेंड। ऐसे करना था। गॉट इट। सो इस तरह से हमने आपको ये समझाया। राइट बेटे। अब सभी बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट दी हुई है, पुल अप। सभी बच्चे निकालो असाइनमेंट। शाबाश। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें मैं कौन से क्वेश्चन करने लगा हूं। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं इवन क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, 2, 4, 6। और जो ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आप खुद करोगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। कैसे करना है, रीड इट। A pendulum keeps swinging because gravity pulls the bob। क्या ऑप्शन है इसका बताओ। जिन बच्चों को लगता है फर्स्ट ऑप्शन वो एक फिंगर खड़ी करो, जिनको लगता है बी ऑप्शन वो डबल फिंगर, जिनको सी ऑप्शन ट्रिपल फिंगर। शाबाश। ओके ओके, न्यूटन इज करेक्ट, पाइथागोरस करेक्ट, पास्कल करेक्ट, रामानुजम करेक्ट, थेल्स करेक्ट, लेबनिट्स करेक्ट। और नेपियर, नेपियर का आंसर, नेपियर का आंसर रॉन्ग। रॉन्ग बेटे रॉन्ग। सिर्फ एक क्लास का रॉन्ग हुआ। पेंडुलम्स कीप्स ऑन स्विंगिंग बिकॉज ग्रेविटी पुल्स द वेव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आपको सिखाया नहीं था। इसका आंसर क्या होएगा, बी ऑप्शन। तो ऐसे था बेटे, देखो जब एक बॉब यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया तो आपको पता है उसका वेट इधर को होता है, तो वेट इधर को, और मान लीजिए अर्थ इधर है, वेट अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इसको ग्रेविटी वाला फोर्स ही मीन पोजीशन की तरफ वापस लाता है। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन था। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए कौन बच्चा बताता है। फोर्थ क्वेश्चन, रेज योर हैंड। पास्कल का आंसर, जो जो भी ऑप्शंस है उतनी बेटे ऐसे पूरा हाथ नहीं खड़ा करना आपने। आपको लगता है अगर सेकंड ऑप्शन है तो 2 करो, थर्ड ऑप्शन है तो 3 फिंगर्स। कितना, पाइथागोरस कह रहा है फर्स्ट, न्यूटन कह रहा है सेकंड ऑप्शन, रामानुजम कह रहा है सेकंड, पास्कल कह रहा है सेकंड, नेपियर कह रहा है थर्ड, लेबनिट्स कह रहा है सेकंड, थेल्स कह रहा है सेकंड।
ओके, अब मैं देखता हूं। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने विक्ट्री साइन बनाया था डबल फिंगर के साथ, उनका आंसर सही है। ओके, मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा आंसर है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड फ्रॉम व्हाट? सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है भाई? ओ वाह, थेल्स का सही है बेटे, थेल्स का सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रामानुजम का सही है। न्यूटन का क्या आंसर है? न्यूटन करेक्ट, पाइथागोरस करेक्ट, पास्कल करेक्ट, और लेबनिट्स, लेबनिट्स का कोई आंसर नहीं है, वेरी सैड। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेपियर? नेपियर का आंसर करेक्ट। लेबनिट्स, इस बार लेबनिट्स का गलत हो गया बेटे। आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। ये मैंने आपको बताया था। जिस जगह से हमने बॉब को लटकाया होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। उसमें धागे की लंबाई से लेकर बॉब के सेंटर तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर तक जाना है, उसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था। जिन बच्चों ने विक्ट्री का साइन बनाया था ऐसे डबल फिंगर के साथ, उनका सही था। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन कह रहा है फर्स्ट, ओके डाउन, न्यूटन डाउन। पाइथागोरस कह रहा है फर्स्ट, रामानुजम कह रहा है फर्स्ट। व्हाट इज द आंसर? नेपियर कह रहा है, नेपियर भी फर्स्ट ही कह रहा है। ओके, लेबनिट्स के बच्चों का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। थेल्स के बच्चे क्लास में सैर कर रहे हैं। थेल्स के टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, नोट किया जाए हायर अथॉरिटी से प्लीज, कि थेल्स के बच्चे, थेल्स के बच्चों का आंसर तो करेक्ट है जो बच्चे बता रहे हैं, शाबाश। अब मैं इसको बताता हूँ। टू पेंडुलम्स हैव द सेम लेंथ बट डिफरेंट बॉब मासेस, द टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट पेंडुलम्स विल बी सेम। क्योंकि मास के ऊपर टीचर ने बताया डिपेंड ही नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। भारी मास हो हल्का मास हो, टाइम पीरियड उतना ही निकलता है जब भी हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कितने बच्चों ने फर्स्ट बताया था? रेज योर हैंड, देखिए कितने बच्चों को सही है। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, भाई देखो बहुत अच्छे बेटे, डाउन। लेबनिट्स, मैं लेबनिट्स के बच्चों का ध्यान थोड़ा सा कम है पढ़ने में बेटे, बाकी सब अच्छा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं अब कौन बच्चा आंसर देता है। A pendulum A is longer than pendulum B. Which one will complete fewer oscillations in the same time? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। क्या आंसर है? पाइथागोरस कह रहा है फोर्थ, न्यूटन कह रहा है फर्स्ट, ओके, नेपियर कह रहा है थर्ड, सबका अलग अलग आंसर। लेबनिट्स कह रहा है सेकंड, पास्कल फर्स्ट, रामानुजम, रामानुजम का कोई सैर चल रही है वहां तो रामानुजम, थेल्स में भी सैर, थेल्स के बच्चे पता नहीं क्यों खड़े हो गए। ओके, अब सुनो, इसमें उसने क्या बोला हुआ है? ए पेंडुलम लॉन्गर है, बी शॉर्टर है। ध्यान से सुनना बेटे, जो पेंडुलम लॉन्गर है और बी शॉर्टर है, दूसरे शब्दों में ए पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है और बी पेंडुलम की लेंथ कम है। जिसका लेंथ ज्यादा होता है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। ए पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, बी का कम हो गया। लेकिन पेपर में उसने नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछी हैं, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी कम है, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपको इसने बोला है किसकी फ्रीक्वेंसी विच विल हैव फ्यूअर एक्सीलेशन,
किसकी फ्रीक्वेंसी कम होएगी? ए पेंडुलम की। 10th का आपने ए आंसर बताना है, 10th का ए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल था, स्टार लगा लो सभी बच्चे, 10th क्वेश्चन के लिए स्टार लगा लो, ये आपने गलत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कंपटीशन, सारी क्लासों में कंपटीशन है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 12, कंपटीशन। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इफ द सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू द मून? तो जब मून पे लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई कह रहा है फर्स्ट, कोई कह रहा है सेकंड, ओन पास्कल कह रहा है फोर्थ, थेल्स के बच्चे सेकंड कह रहे हैं, रामानुजम का कोई आंसर है? रामानुजम में फर्स्ट कह रहे हैं, लेबनिट्स में थर्ड कह रहे हैं, नेपियर का क्या आंसर है बेटे? नेपियर का फर्स्ट कह रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूं, डाउन डाउन। व्हाट इफ पेंडुलम इज टेकन ऑन द मून? देखो, अगर एक पेंडुलम को अर्थ से मून की तरफ ले जाएं तो आपको पता है अर्थ से मून पे जाने पर ग्रेविटी डाउन आ जाएगी, मून की ग्रेविटी कम होती है, डाउन आ जाएगी, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा होती है। और टीचर ने बोला था ग्रेविटी जिस तरफ चेंज करती है उससे उल्टा टाइम पीरियड चेंज करता है। इसका मतलब हो गया मून के ऊपर टाइम पीरियड जाने से बढ़ जाएगा। ओके, it will swing more slowly because gravity on the moon is weaker than earth। A ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड, it will swing faster because there is no air on the moon। ये गड़बड़ हो गया। it will swing keep swinging for longer time on the moon as it has no atmosphere। शाबाश। तो इसमें आपको डी ऑप्शन सही था। शाबाश। अब अजर्शन रीजन में मैं आपको एक करवाता हूं, दूसरा आपने करना है। पेंडुलम प्लेस्ड इन द वैक्यूम में स्विंग फॉर लॉन्गर टाइम। अगर पेंडुलम को वैक्यूम में रख दें, वैक्यूम का मतलब वहां पर एयर भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पेंडुलम को अगर मैं वैक्यूम में, कैसे? इस पेंडुलम को मैं कांच के कंटेनर में, बोतल में बंद कर दूं और ढक्कन लगा दूं ऊपर से, और एयर पंप से सारी एयर बाहर खींच दूं, तो ये लगातार चलता रहेगा, लगातार रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बॉटल में एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अभी मैं ये एक्सपेरिमेंट ओपन में कर रहा हूं, तो ये धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइडों पर जो एयर है वो इसके मोशन में रेजिस्टेंस लेकर आता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। पर वैक्यूम में तो एयर भी नहीं होता, तो एयर में जहां वैक्यूम नहीं होएगा लगातार चलता रहेगा। वैक्यूम हैज नो एयर रेजिस्टेंस। तो 14th क्वेश्चन का असर्शन सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 14th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये बाकी 15 और 16 आप खुद करोगे। अब नीचे आओ, सबसे नीचे, सबसे नीचे देखो, मैंने एक कुछ कैलकुलेशंस दे रखी हैं आपको, उसको फास्ट करने का क्या तरीका है। ए पेंडुलम कंप्लीट्स 99 ऑसिलेशंस इन इतने सेकंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? देखो, ये कितनी ऑसिलेशंस हैं बेटे? 99 ऑसिलेशंस। कितना टाइम लग गया? टाइम टेकन 247.5 सेकेंड। अब वो बोलता है टाइम पीरियड बताओ। भाई 99 ऑसिलेशंस के लिए अगर इतना लगा है टाइम, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा? 247 डिवाइडेड बाय 99, इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल ऑसिलेशन इज इक्वल टू टाइम पीरियड। सभी बच्चे ये फार्मूला लिख लो,
सभी बच्चे लिखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल ऑसिलेशंस, नहीं, टोटल टाइम टेकन, सॉरी, ऊपर लिखना है आपने टोटल टाइम टेकन। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, फार्मूला लिख लो सभी बच्चे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है। और ये डिवीजन कैसे होएगी शॉर्ट में, ये तो बड़ी टिपिकल डिवीजन है 99 से डिवाइड करना। कैसे कर सकते हैं इसको शॉर्टकट से, ये आप खुद करना, नहीं तो नेक्स्ट वैदिक मैथ क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह से मैंने और न्यूमेरिकल दे रखे हैं, सभी बच्चे आप इन क्वेश्चंस को करके आएंगे। कितने बच्चे का प्रॉमिस करते हैं कि होमवर्क करके आएंगे? लेट्स वाइंड अप द लेक्चर। शाबाश। जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा एक बार ऐसे करके दिखा दो। ब्यूटीफुल, थैंक यू। कितने प्यारे बच्चे हैं बेटे। आप इसका होमवर्क करके आना, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।